Hello dear students, today I am going to teach you our next part of chapter 3। जैसे कि बच्चों हम चैप्टर 3 देख रहे थे। चैप्टर 3 में सारे कंसेप्ट देखे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। एक बार एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 से मैं चालू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। आप देखते रहिए, टिक मार्क करते रहिए, जरूरी चीजों को नोट डाउन करते रहिए। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 60, क्वेश्चन 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। A, which of the following is a database object in MS Access? First option table, second option report, third option both 1 and 2. So answer both 1 and 2. Which of the following is not a data type in Access? First option text, second option numeric, third option macro. So second option numeric is our answer. See which of the following uniquely identifies the records in a table. First option primary key, second option field name, third option record values. So first option primary key is our answer. D देखिए, which of the following is used to retrieve information from a database? First option table, second option form, third option query. So option third query is our answer. E देखिए, which of the following provides an interface to insert, update and delete records in a table? Report, form or query? Answer second option form. So बच्चों जैसे कि फर्स्ट में थर्ड ऑप्शन आया बोथ 1 and 2, बी में सेकंड ऑप्शन न्यूमेरिक, सी में फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी की इज आवर आंसर, डी में थर्ड ऑप्शन क्वेरी इज आवर आंसर और ई में फॉर्म सेकंड ऑप्शन इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है और ब्लैंक्स फिल अप करनी है। फर्स्ट a blank can be defined as a collection of related in brackets similar data or information from which users can retrieve the desired information. Answer database. फर्स्ट blank में क्या है आंसर देखिए database. B, the blank refers to the way of designing a database and storing information in it. Answer database models. Database models is our answer. C देखिए, multiple records combined to form a blank. क्या है? Multiple records combined to form a blank. Answer table. D, the blank area allows you to define three main components, namely field name, data type and description of the field. Answer is field grid. E, a blank is the field. A blank is the field that has a unique value for all the records in the table. Answer is F. The blank allows you to directly enter the data without defining the structure of the table. Answer is data sheet view. Question 3. Write if the given statement is true and F it is false. सही के सामने ट्रू और गलत के सामने F. A,
multiple related fields combine to form a record, सही है। B सही है, इसलिए T कैपिटल T for true। Memo data type can have up to 255 characters, गलत है। F the create tab allows creating the objects of a database, बिल्कुल सही है। D when a table is opened, comma by default it appears in the design, गलत है, तो false कर दीजिए। E देखिए queries provide an interface to insert, update and delete records in the table, गलत है। F for false, last F reports are designed to be printed in a professional format, क्या है देखिए रिपोर्ट्स so it's a true answer, तो उसके सामने टी कर दीजिए। सब बच्चों क्वेश्चन 3 पूरा होता है। क्वेश्चन 4 आंसर द क्वेश्चन आपको ढूंढकर आपके टेक्स्ट बुक में आपके CWA में लिखना है और यहाँ पर चैप्टर 3 पूरा होता है, एक्सरसाइज पूरी होती है। तो बच्चों एक बार फ्लैश में रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू MS Access 2007, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस टूल है जिसमें हमने DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट देखे, डेटाबेस मॉडल के बारे में बात की, 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल, हायरार्चिकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल। ये 3 डेटाबेस मॉडल के नाम हमने देखे जाने से। फिर बेसिक कंपोनेंट ऑफ DBMS देखा, उसमें हमने फील्ड देखा, रिकॉर्ड देखा और टेबल देखा, फील्ड, रिकॉर्ड एंड टेबल। फिर हमने एडवांटेजेस ऑफ DBMS, उसमें कौन से एडवांटेज देखे देखते हैं। इजी टू लर्न एंड यूज, फिर दूसरा एडवांटेज देखा था रिड्यूस रिडंडेंसी, रिड्यूस इनकंसिस्टेंसी, शेयरिंग डेटा, डेटा सिक्योरिटी एंड बैकअप एंड रिकवरी, ये सारे हमने एडवांटेजेस बेनिफिट्स ऑफ DBMS देखे। फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कुछ ऑब्जेक्ट्स, जरूरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखे जैसे कि टेबल, फॉर्म्स, क्वेरी और रिपोर्ट। फिर हमने कैसे MS एक्सेस में टेबल क्रिएट किया जाता है, कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे डेटाबेस को सेव करते हैं वो देखा, और कैसे डेटाबेस को एग्जिट करते हैं, क्विट करते हैं। टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं उसमें हमने क्रिएटिंग टेबल इन डिजाइन में देखा। इसमें 2 पार्ट देखे, फील्ड ग्रिड एरिया एंड फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया। फिर हमारे MS एक्सेस के डेटा टाइप देखे, टैग्स, मेमो, नंबर, डेटेड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर और ये सब, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेटा टाइप देखे। फिर बच्चों हमने प्राइमरी के बारे में देखा, जैसे यूनिक डालने के लिए रिपोर्ट्स। फिर हमने इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग डिजाइन में देखा। फिर हमने क्रिएटिंग अ टेबल इन डेटा सेट में देखा, इंसर्ट एंड डिलीटिंग इन डेटा सेट में देखा। फिर एग्जिस्टिंग टेबल को कैसे ओपन करते हैं, एग्जिस्टिंग टेबल में कैसे वैल्यू डालते हैं, एंटर करते हैं, एडिट करते हैं, टेबल में कैसे नेविगेशन करते हैं वो देखा। सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स देखा, कैसे टेबल में आप रिकॉर्ड सॉर्टिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। फिर कैसे क्वेरी जनरेट कर सकते हो, क्वेरी क्रिएट कर सकते हो, डिलीटिंग क्वेरी, रनिंग क्वेरी। फिर हमने फॉर्म्स के बारे में देखा, कैसे फॉर्म्स डिजाइन करते हैं। फिर हमने रिपोर्ट डिजाइन करना देखा, कैसे रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, ब्लैंक रिपोर्ट,
रिपोर्ट डिजाइन एंड बाय यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड। ये सारी चीजें हमने देखी बच्चों। फिर हमने लास्ट में कैसे डेटाबेस और एमएस एक्सेस को क्लोज और एग्जिट करते हैं वो देखा। और उसके बाद बच्चों हमने आज एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1, 2 और 3 और ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए। जरूरी चीज आपने लिख ली होगी, समझ ली होगी। सभी पॉइंट्स को बच्चों नोट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए और समझते रहिए। जैसे कि ये चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, आगे हम हमारा चैप्टर 4 बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक में फिलअप कर दीजिए एक्सरसाइज और सीरीज में भी अच्छी तरह से जरूरी चीजें अच्छी तरह से लिख लीजिए।